Hi everyone, this is Shruti Ganu and welcome back to my channel Shrutiverse. So as you all know, I have cleared IIT JAM with AIR 6, GATE Excel with AIR 107, GAT B with AIR 42 and also qualified for CUET PG Biochemistry and TIFR Biology. And also got interview calls from various institutes like IISER Pune, TIFR Mumbai, TIFR Hyderabad, NISER Bhubaneswar, RCB, etc. So in this video, I'm going to give a roadmap for the students who are going to appear for IIT JAM Biotechnology in 2027. As I'm been getting various requests for how to start study and students be like, कैसे start करना चाहिए हमें क्या पढ़ना चाहिए they are absolutely clueless and they are going to appear for 2027 or 2028. First of all सबसे important चीज़ जो है download IIT JAM syllabus एंड सी कि आप जो बैचलर्स कर रहे हैं उसके साथ उसका सिलेबस कितना सिंक करता है एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न्यू पढ़नी पड़ेगी. Number 2, decide if you want to go with self-study or take help from a coaching institute to be consistent. Both are absolutely fine. For students preparing for IIT JAM 2027, एक कॉमन चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है, जो स्टूडेंट्स IIT JAM को सीरियसली लेते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं, सही गाइडेंस चूज़ करते हैं. और इसका प्रूफ हमें 2025 रिजल्ट्स में क्लियरली देखने को मिला जब फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर किए. इसी वजह से फिजिक्स वाला बहुत सारे एस्पिरेंट के ट्रस्टेड पार्टनर बन चुका है और अब फिजिक्स वाला लेकर आया है एनिवर्सरी सेल जहां IIT JAM कोर्सेज डिस्काउंट प्राइसेस पर मिल रहे हैं. आगे मैं शेयर करूंगी कैसे फिजिक्स वाला के IIT JAM बैचेस आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. सो साकार 2.0 which is available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology. New subjects stats, eco and PCM biotech as well at just rupees 4699. The feature of the batch are live and recorded classes, TPPs and notes, 2500 plus practice questions with detailed solutions. And start your early IIT JAM 2027 preparation with PW batch and use my code STUD300 to grab an additional discount of And 200 if you rupees. are looking for self-study, there are various lectures or videos available in YouTube for IIT JAM Biotechnology, especially for the subject biotechnology. I can name some channels as well if you want, and you can ask any questions in the comment section below. Once you're done checking the syllabus and deciding whether you want to do self-study or coaching, the next step is to make a foolproof plan for this whole year. So plan accordingly that in within 6 months you will complete your JAM syllabus, including physics, chemistry, maths as well. So what you will do is make monthly planners, like in this month I am going to complete these topics of IIT JAM Biotechnology, which is particularly from biotechnology subjects. Pick few topics from physics, chemistry and maths as well. Next month also do the same thing. So for 6 to 7 months, make this plan that you are completing your syllabus, and according to this monthly planner, you will complete your syllabus. If you're going with a coaching institute, they already have a lecture plan ready, so you can plan according to that. So weekly planning is equally important. So what you will do is आपको एक week में क्या करना है, you just make a list out of it and then try to complete as many as you can, because perfection cannot be achieved. आप सारे topics for sure ऐसा होगा कि आपसे एक दो मिस हो जाएंगे, so don't worry about that. But इसका मतलब ये नहीं है कि you will not try to complete your weekly targets or monthly targets. So do try to make weekly targets as well. Now next step is to make daily target as well. So plan ahead, that is actual day से एक रात पहले you plan, write it down in a notebook or somewhere in your phone or anywhere, and then sleep कि आपको next day क्या करना है. Write everything, whatever important work you have, write there so that you remember that क्या क्या टास्क है आपका कल करने के लिए, and then you plan ahead कि इतना टाइम मेरे को मिलेगा कल, in that time I can watch lectures, I can solve questions. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्टिंग के टाइम में आपको समझ नहीं आएगा तो कि क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है. तो स्टार्टिंग के 1 or 2 वीक्स में जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस विच द लेक्चर्स प्रोवाइड और DPPs वेयर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड्स. और यूट्यूब में भी अगर आप लेक्चर करेंगे तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे दे विल make you solve questions as well, so you can take help of that. But after 1-2 weeks आपको समझ में आएगा कि कैसा flow है, then start solving chapter wise questions. Now how to solve this chapter wise question? So मेरे telegram channel में, जिसका link मैं description में provide कर दूंगी, वहाँ पे chapter wise PYQs के PDFs available है for all biotechnology, physics, chemistry and maths. So किसी की भी tension नहीं होगी. And so
जैसे ही आपका यूनिट चल रहा है उसके साथ साथ ही आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते जाइए। एंड अगर आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया है विच इज़ ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ के डीपीपी सॉल्व करिए एंड यूनिट वाइज जो टेस्ट होते हैं वो भी देते चलिए। नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ टू मैनेज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो इसको भी आपको साइड बाय साइड रखना है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि पूरे हफ्ते में आप कोई भी 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करेंगे, जिसमें से आप एक दिन केमिस्ट्री को डिवोट करेंगे, एक दिन मैथ्स को और एक दिन फिजिक्स को। बट बायोलॉजी पूरी वीक चलनी चाहिए क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट परसेंटेज वेटेज इन द IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। आफ्टर दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिस्ट मेरे टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोडेड है, सो आप देख सकते हैं उसको। सो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जैसे कि मैथ में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट विल हेल्प यू इन गेट एक्सेल एज वेल। नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे इजी टारगेट है मॉडर्न फिजिक्स, जो करने से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जो मैकेनिक्स पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिक्स आप कर लीजिए। अगर आपको ये जानना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ से करें, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th एंड 12th लेवल के यूट्यूब के लेक्चर्स देख के कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में थोड़ा BSc लेवल आता है, तो उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल +1। सो उसके लिए यू हैव टू बी लाइक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में जो लिखा है, जस्ट स्टडी दैट। एंड इफ़ यू वांट एनी हेल्प, जैम केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है जैम केमिस्ट्री के लेक्चर से, क्योंकि उतना डीप नहीं आएगा। बट BSc लेवल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डीप आते हैं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री के PYQs दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आप केमिस्ट्री उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है तो। अब आपके 2 यूनिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हों, केमिस्ट्री में भी आपने 1-2 टॉपिक्स कर लिए हों, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 1-2 टॉपिक्स कर लिए हों, देन स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे स्टार्टिंग में, बट स्टिल स्टार्ट सॉल्विंग। मैंने भी सेम तरीका से किया था। सपोज अगर आप फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपका मार्च तक सिलेबस लाइक 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, तब से आप फुल लेंथ पेपर स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, आपका 10 से 15 हफ्ते में IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के 15 ईयर्स के PYQ सॉल्व हो जाएंगे। सो वीक में एक PYQ सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उसको सर्कल कर लीजिए कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा उसको आप सॉल्व करते जाइएगा। और वैसे भी आप चैप्टर वाइज PYQs तो कर ही रहे हैं। फुल लेंथ करने से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि पूरे एग्जाम का सिनेरियो क्या रहता है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह से पढ़ना होता है, कितने डेप्थ में पढ़ना होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आप एक डाउट कॉपी बना। नेक्स्ट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं एक डाउट कॉपी बना के रखिए। सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला जिसका आंसर आपको नहीं आता है, भले आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो, आपको नहीं आता है, उसको उस कॉपी में लिखिए अलॉन्ग विद द आंसर एंड कॉन्सेप्ट। सपोज आप एक सपोज आपको एक क्वेश्चन दिखा जिसका आपको कोई क्लू नहीं है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, भले आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, तो जस्ट नोट डाउन द कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो एक कॉपी में आपके लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट जब आप रिविजन कर रहे हैं तो उस कॉपी को भी रिवाइज करिए। इससे क्या होता है, जो टॉपिक्स आपको याद नहीं रहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो सब आप रिवाइज कर रहे हैं, जिससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। आई नो ये बहुत हार्ड होता है उन लोगों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल टाइम निकालिए। अगर आपका कॉलेज मान लीजिए शाम के 6-7 बजे भी आप फ्री होते हैं, टेक 1 आवर ब्रेक, 8 से लेकर 1 बजे तक आप पढ़िए, जो आपका डेली टारगेट है उसको ख़त्म करिए। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं या कोचिंग से आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो 2 से 4 घंटे आपके लेक्चर्स देखने में जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए, रिविजन में लगाइए। सो जैसे ही आप सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं वैसे वीकली रिविजन भी करते जाइए ताकि आप पहले का नहीं भूल रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको रिपीटेड रिवाइज करना पड़ता है, तो जाके रिटेंशन होता है। क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है यूनिट्स, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ बायोलॉजी इन IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी। सो इन सब यूनिट्स को ट्राई करिए कि सबसे पहले फिनिश कर दिया जाए।